फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अफगान तालिबान और हिंदुत्वा गठजोड़ को सख्त वार्निंग दे दी। कहा अफगान तालिबान प्रॉक्सीज को लगाम डालें, भारत इन किराए के कातलों को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। दुश्मन की हर प्रॉक्सी को खाक में मिला दिया जाएगा। काकूल अकेडमी में पासिंग आउट परेड से खिताब में फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल को तशवीशनाक करार दिया। कहा भारत ने दहशतगर्दी को रियासती पॉलिसी के तौर पर अपनाया हुआ है। दुनिया के सामने भारत के मकरू, मुनाफिकाना और संगदिल चेहरे को बेनकाब कर दिया। Taliban regime must rein in the proxies who have sanctuaries in Afghanistan and are using Afghan soil to perpetrate heinous attacks inside Pakistan. The law enforcement agencies and the armed forces will surely defeat this menace as well. Be rest assured that like our victory in the conventional domain, every state proxy of our neighbor will be razed to dust. Having failed in its belligerence against Pakistan in Operation Marka-e-Haq, India continues with state-sponsored terrorism as a preferred policy. Our adversaries' use of Fitna al-Hind and Fitna al-Khawarij as hired guns exposes its cowering, hypocritical and heinous face to the world. Equally disconcerting is the use of Afghan soil for terrorism in Pakistan. We urge the people of Afghanistan to choose mutual security over perpetual violence and progress over hardline obscurantism. एटमी माहौल में जंग की कोई गुंजाइश नहीं। छोटी सी इश्ताल अंगेजी का भी दुश्मन की तवक्कुआत से बढ़कर और फैसला कुन जवाब देंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ललकार। कहा भारत की जोग्राफियाई वुसअत के गलत अंदाजों को चकनाचूर कर देंगे। भाती धमकियों से कभी खौफजदा नहीं होंगे। Let me assure the nation that with the help and mercies of Allah Almighty and support of people, we will not lose an inch of this sacred land. I advise and firmly caution the Indian military leadership that there is no space for war in a nuclearized environment. Settle the core issues with Pakistan as per the international norms on the basis of equality and mutual respect. We will never be intimidated nor coerced by your rhetoric and shall respond decisively beyond proportions to even a minor provocation without any qualms. Pakistan would respond much beyond the expectations of the initiators. With diminishing distinction between combat and communication zones, the reach and lethality of our weapon systems will shatter the misconceived immunity of India's geographic vastness. The most recent display of the spirit and resolve of the armed forces of Pakistan during Marka-e-Haq, Operation Bunyan-e Marsoos, has further strengthened the trust and confidence of the people of Pakistan on the competence and far-reaching capabilities of its armed forces. By neutralizing all threats with remarkable professionalism, downing advanced assets like Rafale, targeting multiple bases including S-400s, and showcasing multi-domain warfare capabilities, Pakistan has displayed its capabilities and will to defend. Pakistan once again came out victorious against a treacherous enemy marked by strategic blindness and naivety and filled with hubris and rhetoric about its misguided hegemonic ambitions. आगे बढ़े और आपको बताएं, आईसीसी का गैर संजीदा रवैया। अफगानिस्तान की तरफ से क्रिकेटर्स की हलाकतों के दावे पर इजहार अफसोस। बिना तस्दीक वाक़े को काबिल मजम्मत करार दिया। आईसीसी ने अफगान क्रिकेट बोर्ड के दावे पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया कि फ़ज़ाई हमले में अफगान क्रिकेटर्स मारे गए जो दोस्ताना मैच के बाद घर वापस जा रहे थे। पाकिस्तान ने आईसीसी की जानिब से अफगान क्रिकेटर्स की हलाकतों से मुतालिक दावा मुस्तरद करते हुए गैर मुसद्दिक़ा और जानिबदाराना बयानबाजी पर तशवीश का इजहार किया है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर कहते हैं किसी भी आज़ाद जरिए से तस्दीक किए बगैर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया गया। एक्स पर पैगाम में वज़ीर इत्तलात ने कहा कि आईसीसी के चेयरमैन जय शाह ने फौरन सोशल मीडिया पर दावे की हिमायत की जिसने मामले में सियासी एजेंडा वाज़ेह कर दिया। वज़ीर इत्तलात ने खबरदार किया कि खेल को दहशतगर्दी और सियासी झगड़ों में उलझाना क्रिकेट के वक़ार के लिए नुकसानदेह होगा।
वफाक ने सिंध हुकूमत से जो वादे किए वो वफा न हो सके। पीपल्स पार्टी का तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए 1 माह का वक्त दे दिया। एक बार फिर सैलाब मुतासरीन की बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए मदद करने का मुतालबा कर दिया। कराची में सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के बाद सेनेटर शरी रहमान ने कहा कि अगर मुतालबात पूरे न हुए तो अहम सियासी फैसले करेंगे। नदीम अफजल चंद और शर्जील मेमन ने पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन करने का मुतालबा भी कर दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा जमहूरियत का साथ दिया है। हुकूमत साजी में हमने बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। जो वादे किए थे हुकूमत साजी के वक्त शुरू में, खास तौर पे पंजाब और हमारी फेडरल गवर्नमेंट के साथ, तो जो मसले मसाइल हैं, जो अनफुलफिल्ड प्रोमिसेस हैं, उनके हवाले से हमने आज ये फैसला किया कि हम हुकूमत को और प्राइम मिनिस्टर को जरूर टाइम देंगे। 1 महीने बाद हम फिर मिलते हैं। पीपल्स पार्टी की CEC होगी, हम रिव्यू करेंगे कितने वादे किए हैं, फिर हम अपना लायामत भी तय करेंगे। जो गवर्नमेंट जब बनी थी तो एक एग्रीमेंट हुआ था, उसमें लोकल पार्टीज इलेक्शन पंजाब में सबसे अहम मुतालबा। प्राइम मिनिस्टर ने टाइम मांगा था, ठीक है, क़यादत से अगर उन्होंने टाइम मांगा है तो, लेकिन ये मुतालबात हमारे आज भी पब्लिक के जो मुतालबात हैं वो स्टैंड करते हैं, हम उसके ऊपर खड़े हैं। जब इशूज होंगे, जब सैलाब मुतासरीन की मदद की बात होगी पूरे पाकिस्तान में, तो उसको उसी तरीके से एड्रेस किया जाएगा। सीज फायर का सिर्फ ये है कि जी हम लोग एक दूसरे के खिलाफ बयान नहीं देंगे, लेकिन अगर कोई जेन्युइन बात होगी तो वो जो स्टांस है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा से लेती हुई आई है और वो स्टांस हमेशा से जारी भी रखेंगे। पंजाब हुकूमत के TLP पर पाबंदी के लिए वफाक को लिखे गए खत की तफसीलात सामने आ गई हैं। खत के मुताबिक TLP 8 साल से पुरतशद्दुद एहतजाज में मुलव्वस रही। तंजीम मुसलसल रियासती रेट को चैलेंज करती रही। पंजाब काबीना ने समरी की मंजूरी सर्कुलेशन के जरिए दी। रिपोर्ट में TLP की सरगर्मियों को पब्लिक सेफ्टी के लिए खतरा करार दिया गया। खत में TLP पर मजहबी और फिरका वाराना नफरत फैलाने के इल्जामात आयद किए गए हैं। दूसरी जानिब पंजाब पुलिस ने सूबे भर से TLP के 5600 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने मजहबी जमात के 30 कारकुनों को 11 दिन के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में दे दिया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की PTI की सीनियर क़यादत से मुशावरत, इब्तदाई एजेंडा तैयार कर लिया। बानी की रिहाई के लिए कोशिशें तेज करना और सूबे में अमन का क़याम तरजीह करार। आला ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़ का फैसला। इस्लामाबाद में होने वाले इजलास में पार्टी के सूबाई सदर जुनैद अकबर, साबिक स्पीकर असद कैसर, आतिफ खान, शहराम तरकई और दीगर ने शिरकत की। एजेंडे पर अमल दरामद के लिए मुलाकातें जारी रखने का फैसला भी किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज की लाहौर समेत पंजाब भर में स्मोक से बचाव के इक़दामात मज़ीद सख्त करने की हिदायत। लाहौर मशरिक़ से आने वाली हवाओं की जद में आज औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 195 से 210 रहेगा। शहरी गैर ज़रूरी घर से ना निकलें। स्मोक मॉनिटरिंग सेंटर ने एडवाइजरी जारी कर दी। शहर में आज सख्त इंतजामात करने का फैसला किया गया है। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की फोर्स, पुलिस और ज़िला इंतज़ामिया मिलकर एंटी स्मोक ऑपरेशन करेंगे। ज़्यादा फ़ज़ाई आलूदगी वाले इलाकों में एंटी स्मोक गन्स का इस्तेमाल किया जाएगा। सीनियर मरियम औरंगज़ेब का कहना है तामीराती मटीरियल के ट्रकों ट्रॉलियों की मॉनिटरिंग शुरू कर दी है। SOPs पर अमल न करने वाली हैवी व्हीकल्स लाहौर में दाखिला बंद होगा। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। तामीराती सरगर्मियों के दौरान गर्दो गुबार पर काबू पाना स्मोक की रोकथाम के लिए ज़रूरी है। लाहौर में स्मॉग का मसला संगीन हो गया। AQI इंडेक्स 300 से तजावुज़ कर गया। स्मॉग कंट्रोल करने के लिए हुकूमत की जानिब से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, जानते हैं सामिया सईद से। जी सामिया, बताएं। जी बिल्कुल, लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी का मसला मज़ीद संगीन होता जा रहा है। इस वक्त भी लाहौर एयर क्वालिटी इंडेक्स के एतबार से दुनिया भर के आलूदा तरीन ममालिक में सर फहरिस्त पर है। इस वक्त लाहौर का जो AQI है 316 रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो कि पंजाब के जो दीगर इलाके हैं उनमें भी ये AQI जो है इंतहाई नाक़िस सतह को पहुँच गया है। तो बिल्कुल इसी तरह हुकूमत पंजाब की जानिब से ऐसे इक़दाम किए जा रहे हैं, पॉलिसी मुरतब की जा रही है। और चूँकि आज इतवार का रोज़ है, उस तादाद में गाड़ियाँ भी जो है वो रोड पर नहीं है, तो EPA की जानिब से, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन अथॉरिटी की जानिब से एक ग्रैंड ऑपरेशन किया जाएगा, जिसमें एंटी स्मोक गन्स का इस्तेमाल मैसिव लेवल पे किया जाएगा, जिसमें जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 600 से कम होकर 170 तक जो है वो पहुंच जाएगा। इसमें डिफरेंट इलाकों में एंटी स्मोक गन्स को जो है पानी का जो है वो छिड़काव किया जाएगा।